Today we are going to study the second week lecture of our course. Before going forward, let's have a look what we studied in the last lecture. In the last lecture, we have covered different concepts. For example, we started with the very basic concept of computers, what computer is, how it works. Then we talk about some logical units of our computers, for example, input unit, output unit, memory unit, and some more. After discussing the logical units of our computers, we also discussed about the computer languages. As we know that computer is a machine, it is not able to understand our language, human languages. It only understands the languages, that is binary language, bit language, because of its digital nature. It only understands the signal is coming or signal is not coming. In terms of understanding, we say that the signal in the terms of zeros and ones. So we call it a binary language, also known as the machine language, the lower level languages. Then we also discussed the complexity of low level languages, and this problem then resolved with the assembly languages. And then further, we also discussed about the high level languages like C, C++, Java, and much more recent languages. After discussing the languages, we particularly discussed the language C and C++. We also talk about their libraries and how C language functionalities are interlinked in the C++ libraries. C++ is the superset which includes all the functionalities of a C language. Then we also discussed about the programming styles like structured programming and object-oriented programming. Structured programming is the programming style where we solve any problem by following some steps in a sequence in a flow. Whereas in object-oriented programming, the programming scenario covers the objects and their relationship with other objects and their functionalities. Next, we covered the elements of the structured programming. Elements of the structured programming include the routines, subroutines, instructions, functions, and much more. At the end, we have also discussed the development steps of our program. When we want to develop a program, then first we need to edit it, then it goes with the pre-processing, then linking, and then it's converted into an object file, and that object file is then get executed by your processor. Now let's start today's lecture. In today's lecture, we are going to cover how we can write a C++ program, what are the data types and the memory concepts we can use in our program. Simple C++ program. First we talk about what is a program. This is the same thing we have discussed in the last lecture as well, what actually a program is. A computer program is a set of instructions. It is nothing more but a set of instructions. हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जिस तरह से बात की थी कि जब आप किसी भी मशीन से या किसी से भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उसके कुछ स्टेप्स डिफ़ाइन कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंट स्टेप्स को सॉल्व करते हैं एंड फाइनली यू गेट योर फाइनल आंसर. बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने प्रोग्राम को भी डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करना है ताकि उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें कोई पर्टिकुलर टास्क अपने कंप्यूटर से करवा सकें. अगेन, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने लगें तो हमेशा आपने इस तरीके से अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना है. जैसे आप वो काम कंप्यूटर से अगर करवाने के लिए चाह रहे हैं तो आप उसको क्या क्या स्टेप्स करने के लिए कहेंगे. आपको हर एक छोटे से छोटे स्टेप को अपने माइंड में रखना है, वो अपना पूरी रिक्वायरमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए. एक सिंपल C++ प्रोग्राम को पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ इंक्लूडेड है. हमारे पास इसमें लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2. इन लाइन नंबर 1 and line number 2 you can see that we have two forward slashes. These two forward slashes means this code after these two slashes is not part of your program. It is only a helping note for the programmer. Being a programmer, it is convenient for us to write down some notes regarding our program. हम different time पे different programs को लिख रहे होते हैं.
यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंपल प्रोग्राम। अभी हम बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम बहुत बड़े प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए समटाइम खुद डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि किस पैकेज में या किस पर्टिकुलरली ब्लॉक में हमने क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी थी और उसकी रीज़न क्या थी। हम उन चीज़ों को कवर करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं। दोज नोट्स आर कॉल्ड कमेंट्स इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कमेंट्स ऐड करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, जिसको हम आगे गो थ्रू करते हैं। वन ऑफ द कमेंट इज़ द सिंपल डबल स्लैशेस। डबल स्लैश मीन्स इन डबल स्लैश के बाद उस सिंगल लाइन में, नॉट आफ्टर ऑल द लाइन्स, ओनली फॉर दैट सिंगल लाइन, उस लाइन के आगे जो भी लिखा जाएगा डबल फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद, वो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, योर नेम, योर फैमिली नेम, योर क्लास नेम, योर सब्जेक्ट नेम, एनीथिंग यू वांट टू राइट इन दिस यू कैन राइट इट। आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। आप एक लाइन के अंदर सिर्फ कमेंट्स भी लिख सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि जिस कुछ लाइंस आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपके पास ये एक पर्टिकुलरली कोड आपने लिखा है, और उस कोड के बाद आपने उस कोड से रिलेटेड कमेंट ऐड किया हुआ है कि इस लाइन में मैंने क्या चीज़ ऐड की है, या इस कोड का क्या मीनिंग है, या इस कोड का क्या पर्पज़ है। सो इन वन लाइन यू कैन हैव बोथ द एग्जीक्यूटेबल कोड एज वेल एज द कमेंट्स, जो आपके सिर्फ प्रोग्रामर के लिए हैं, जिसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से, कंप्यूटर से, कंपाइलर से, प्रोसेसर से कोई लिंक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक हिंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं। ओके, नाउ कम टू फर्स्ट वी हैव सम कमेंट, दैट इज़ इट इज़ अ सिंपल प्रोग्राम। देन वी एडेड अनदर कमेंट, टेक्स्ट प्रिंटिंग प्रोग्राम, कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करेगा। आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाने लगेंगे, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ इंक्लूडिंग योर हेडर फाइल्स। आपको अपनी लाइब्रेरीज़ को, अपनी हेडर फाइल्स को, अपनी नेम स्पेसेस को ऐड करना है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग के C++ के अंदर प्रिंटिंग किस तरह होती है, C++ में फंक्शन कैसे काम करता है, या C++ का कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन की फंक्शनैलिटी में क्या कुछ शामिल है, ये सब कुछ हम ऐड नहीं कर सकते इन अ सिंपल प्रोग्राम। अगर हम हर प्रोग्राम में ये सारा कुछ ऐड करने लग जाएं तो हमारे प्रोग्राम्स बहुत लंबे भी हो जाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन भी उनकी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हर लैंग्वेज की लाइब्रेरीज़ मिलती हैं। जैसे अगर आप मैथ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं और आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई एल्गोरिदम रिक्वायर्ड है, कोई आपने कैलकुलेशंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होती हैं। आपके पास लाइब्रेरी, जैसे आपके पास जो ऑन कैंपस लाइब्रेरी होती है, उसमें बुक्स अवेलेबल होती हैं। जो आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, इनमें कुछ हेडर फाइल्स होती हैं। बुक का कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हेडर फाइल्स है। आप उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, ताकि आपके प्रोग्राम में जो बिल्ट इन C++ की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो काम कर सकें, और उनकी डिटेल हमें कंपाइलर को बताने की ज़रूरत ना रहे। First line is that hash include iostream. Simple, hash include is your keyword. Hash का मतलब है कि आप कुछ include करने लगे हैं। hash आपके पास कुछ प्री प्रोसेसर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसकी फर्दर डिटेल हम बाद में देखेंगे। include आपके पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ हम इनकी डिटेल्स बाद में देखेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है कि कीवर्ड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी हेल्प से ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट हुई है। जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, उर्दू के कुछ अल्फाज हैं, उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। हर कीवर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा और उसको उस मीनिंग के साथ ही यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे दैट इज़ इंक्लूड के नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि वी वांट टू इंक्लूड समथिंग इन आवर प्रोग्राम। व्हाट वी वांट टू इंक्लूड, वी नीड टू ऐड दैट विद द सम ब्रैकेट्स। हम क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, हम क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं, वो हमें इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखनी होगी। आपको हर प्रोग्राम के अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे, इट इज़ मस्ट फॉर यू टू क्लोज दोज ब्रैकेट्स। जब भी आप कोई ब्रैकेट ओपन होगी वो क्लोज ज़रूर होगी। हेयर वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट को ओपन किया, और जब हम अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेंगे उसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज भी ज़रूर करेंगे। In between these two brackets, we need to mention our header file name, that is iostream.
आईओस्ट्रीम आपके पास एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसी हेडर फाइल है जो आपकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को हैंडल करती है। इनपुट का क्या मतलब है कि वो सारा का सारा डेटा जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंप्यूटर को देना चाहते हैं। आउटपुट स्ट्रीम का क्या मतलब है कि वो सारा का सारा डेटा जो वापस कंप्यूटर हमें, हमारा प्रोसेसर हमें वापस रिटर्न करेगा थ्रू स्क्रीन, थ्रू एनी वे आउट, दैट इज़ स्ट्रीम्स, लेकिन वो स्ट्रीम्स की फॉर्म में होगा। स्ट्रीम्स यू कैन ऑल्सो कंसिडर एज काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। आपके पास इनपुट स्ट्रिंग्स होंगी, कुछ आउटपुट स्ट्रिंग्स होंगी, और उनके कम्बिनेशन से उनसे रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपकी इस हेडर फाइल में इंक्लूडेड हैं। उनसे रिलेटेड डिटेल्स हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने प्रोग्राम में ये हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं और ये हमें हेल्प आउट करेगी। देन वी ऑल्सो हैव सम स्टैंडर्ड फंक्शंस इन आवर C++ प्रोग्राम्स। C++ के अंदर और भी बहुत कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे फंक्शन किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, फंक्शन एंड कहाँ पे होगा, और डिफरेंट कुछ और इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जिनका पर्टिकुलर कोई मीनिंग होगा। वो सारा कुछ भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा अवेलेबल है इन द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। यू कैन कंसीडर नेम स्पेस एज अ फुल सेक्शन ऑफ योर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस में बुक्स होती हैं। बुक्स कैन बी कंसीडर एज द सिंपल हेडर फाइल्स जिनके साथ .h की एक्सटेंशन लगाई जा सकती है, या फिर जो न्यू आपके पास टूल्स हैं उसमें .h की एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती हमारे पास, हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जहाँ आप कहते हो कि एक सेक्शन में सारी की सारी डिफरेंट बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको नेम स्पेस कह सकते हैं। सो STD इज़ अ नेम स्पेस विच इंक्लूड्स मैनी हेडर फाइल्स विच इंक्लूड्स मैनी हेडर फाइल्स जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन से रिलेटेड हैं। यूजिंग इज़ अ कीवर्ड, नेम स्पेस इज़ अ कीवर्ड, एंड STD इज़ द नेम ऑफ योर नेम स्पेस। ये आपके इस नेम स्पेस का नाम है। इसका मतलब है दैट इज़ स्टैंडर्ड C++ के जितने फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये हमारे पास फर्स्ट 3 लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 ये बहुत हमारे पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो गई कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड कर लिया है, कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, ताकि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पहले से लाइब्रेरीज़ में बने हुए हैं वो हमें दोबारा नाम बनाने पड़ें और वो हमारे प्रोग्राम का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएं, जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे कोड के साथ लिंक हो जाएंगे। कैसे लिंक होंगे, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। बीइंग प्रोग्रामर वी जस्ट नो दैट कि कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली लिंक आवर कोड विद द लाइब्रेरी फंक्शंस और ये उसको मैनेज करेगा। नाउ कम टू आवर प्रोग्राम। In every C++ program, you are going to have different functions. One of the major function or the main function is your main function again. The most important function is your main function. हर C++ के प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मेन फंक्शन नहीं है तो आपके प्रोग्राम का बाकी भी कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर्स को जिन टूल्स के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं उनको सिर्फ ये पता होता है कि हमने मेन को एग्जीक्यूट करना है। जो कोड मेन के अंदर लिखा हुआ है वो सारा का सारा यूज़ होगा, जो कोड मेन का पार्ट नहीं है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा बाय कंपाइलर। अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं तो आपके बाकी फंक्शंस भी सिर्फ तब एग्जीक्यूट होंगे अगर मेन उनको एग्जीक्यूट करेगा या मेन उनको कॉल करेगा। अगर मेन फंक्शन ने बाकी फंक्शंस को कॉल नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है कि वो फंक्शंस ऑल्दो के प्रोग्रामर ने राइट अप तो किए थे, लिखे तो थे, लेकिन वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो कंपाइलर का क्या काम है कि उसने मेन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस सीक्वेंस, द लाइन नंबर। आपका प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो आपके मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। जब तक एक लाइन कंप्लीट नहीं होगी वो सेकंड लाइन पर मूव नहीं कर सकता। लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज हमें ये कैसे पता चलता है कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है? वेरी राइट, हमें एक फुल स्टॉप से पता चलता है कि हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए क्या यूज़ होता है, दैट इज़ अ सेमीकोलन। हर लाइन, हर इंस्ट्रक्शन के एंड पर हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ सेमीकोलन, अ सिंगल सेमीकोलन, राइट। ये सेमीकोलन इस बात की निशानी है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके आगे भी लिख सकते हैं
और बेटर आपके पास अप्रोच क्या होगी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप नेक्स्ट लाइन में एंटर कर दें, तो आप अपनी नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो just for the revision, we have some header files, we have one main function. आपके हर C++ प्रोग्राम में सिर्फ एक मेन फंक्शन होगा जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा? दैट इज़ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, कि जो पहले आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो उसके बाद इंस्ट्रक्शन आएगी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी. एक इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के लिए क्या यूज़ होता है? दैट इज़ अ सेमीकोलन. सेमीकोलन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर सिंगल इंस्ट्रक्शन. आपके पास अब हम इसके फर्दर डिटेल्स में जाते हैं कि एक्चुअल में ये कोड क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें ये तो समझ आ गया कि एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद क्या चीज़ें हैं, हम इसको गो थ्रू करते हैं. ऑल्दो हम फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स हम बाद में चेक करेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में क्या डिटेल्स हैं फंक्शन की काम करने की. लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी कि फ़ंक्शन कैसे काम करता है, ताकि आपको फ़ंक्शन का हेडर और उससे रिलेटेड कुछ लाइंस आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. उनके माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस. जैसे अब तक आपने सिर्फ फंक्शन चूज़ किए होंगे इन योर मैथमेटिक्स कि आप मैथ्स में कोई फंक्शन डेवलप करते हैं. जब भी आप कोई फंक्शन करते हैं तो फंक्शन मीन्स वी हैव सम काइंड ऑफ अ मशीन, सम काइंड ऑफ अ सिस्टम टू विच वी आर प्रोवाइडिंग सम इनपुट्स, जिसको हम कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और हमें उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है. यू कैन कंसीडर अ वेरी सिंपल वन, फॉर एग्जांपल द स्क्वायर फंक्शन, कि आप स्क्वायर फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में कुछ इनपुट देते हैं और उस इनपुट को वो उससे रिलेटेड उसका स्क्वायर कैलकुलेट करता है और वो स्क्वायर हमें फंक्शन रिटर्न कर देता है, हमें वो प्रोवाइड कर देता है. मैथमेटिक्स में आप फंक्शंस को किस तरीके से लिखते हैं? नॉर्मली आपके पास फंक्शन लिखने का क्या मेथड होता है? दैट इज़, if I can write it, okay right. If you want to write something, for example in mathematics, तो आप क्या लिखते हैं? y is equal to फंक्शन का आपका जो भी नाम है, for example fun, और you can write the square, आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, and the input value x. ये x वैल्यू एज इनपुट लेगा फंक्शन, उस फंक्शन का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और उस फंक्शन को कैलकुलेट करके हमें वापस रिटर्न कर देगा. प्रोग्रामिंग में भी बहुत सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है. जब भी आप कोई फंक्शन डेवलप करेंगे तो आपको फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी. सबसे पहली चीज़ जो मेंशन करना ज़रूरी है दैट इज़ द रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन, जो भी एग्जीक्यूशन ये कर रहा है फंक्शन, क्या ये हमें कुछ रिटर्न करेगा. अगर ये कुछ हमें रिटर्न करेगा तो उसकी टाइप क्या होगी, मतलब वो हमें कोई नंबर रिटर्न करेगा, हमें कोई नाम रिटर्न करेगा, हमें कोई ऐसा नंबर रिटर्न करेगा जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होंगी, हमें कोई ये पूरा का पूरा डाटा शीट रिटर्न करेगा. सो वी जस्ट नीड टू मेंशन द टाइप, नॉट द एग्जैक्टली डाटा, वी जस्ट नीड टू मेंशन कि ये हमें किस टाइप का डाटा फंक्शन रिटर्न करेगा. देन वी नीड टू मेंशन द फंक्शन नेम, कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है. जिस तरीके से मैथमेटिक्स में आप आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर अपने इनपुट पैरामीटर्स लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी इसके अंदर इनपुट पैरामीटर्स लिखे जाएंगे कि इस फंक्शन को क्या डाटा हम एज इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर करली ब्रैकेट्स. हर फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ फंक्शन हेडर, वो फंक्शन का हेडर कहलाएगी, और उसके बाद उसके नीचे फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, जो इस बॉक्स के अंदर सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, वो फंक्शनैलिटी आपकी फंक्शन की बॉडी कहलाती है. फंक्शन बॉडी इंक्लूड्स द स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ऑल इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन दीज लाइंस. कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद लिखते हैं तो वो आपके कोड का पार्ट नहीं बनेगी, इवन दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ एरर. तो हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इन ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के दरमियान में वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को मेंशन करना है. इस फंक्शन की आफ्टर ऑल द फुल एग्जीक्यूशन लास्ट में जो आउटपुट हमने रिटर्न करनी है, वो रिटर्न की लाइन हमेशा आपकी लास्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन होगी, क्योंकि जब एक फ़ंक्शन से आप रिटर्न हो गए, मींस एक फ़ंक्शन से जब कोई चीज़ आउटपुट बाहर आ चुकी है, तो अब इस आउटपुट का इस फंक्शन से कोई लिंक नहीं रहा. इसका मतलब है अब अंदर इसकी कोई और मज़ीद एग्जीक्यूशन नहीं होगी, बिकॉज वी गेट द आउटपुट. सो हम अपने फंक्शन को कुछ इनपुट देते हैं, वो उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उनके ऊपर काम करता है और देन हमें उसकी आउटपुट रिटर्न कर देता है. हेडर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम क्या है,
एंड देन क्या वो इनपुट पैरामीटर्स हमसे रिसीव करेगा। फॉर द टाइम बीइंग हमारे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ हो रहा है, दैट इज़ मेन, क्योंकि बिल्कुल हमने स्टार्ट किया है अपने डेवलपमेंट, हमने C++ में फ़र्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर नॉर्मली दो तरह के रिटर्न टाइप्स होते हैं। यू कैन आइदर राइट void कि आपके पास ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, void मीन्स नथिंग। आपके पास नथिंग के बावजूद यू कैन नॉट एक्सक्लूडेड, आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको निकाल दें और कुछ भी ना लिखें। यू नीड टू मैंशन आइदर void और आइदर int। सिर्फ दो तरह का डाटा है जो एक मेन का फंक्शन रिटर्न कर सकता है, या वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अगर वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम उसके लिए मेंशन करेंगे void, और अगर वो रिटर्न करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर रिटर्न कर सकते हैं। देन फॉर नंबर्स वी आर गोइंग टू राइट int मीन्स एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे int मेंशन करेंगे। मेन फंक्शन को कोई भी इनपुट हमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेन का फंक्शन कौन एग्जीक्यूट करता है, ये कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर इसको कोई पर्टिकुलरली डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से इसकी कोई इनपुट नहीं होती। ये फंक्शन मेन फंक्शन जो भी इनपुट लेगा वो भी कंपाइलर से लेगा, और वापस जो चीज़ रिटर्न करेगा वो भी कंपाइलर को रिटर्न करेगा। ये ना तो यूज़र को पता चलेगा, ना ही ये प्रोग्रामर के लिए है। बोथ थिंग्स, द इनपुट एंड द आउटपुट इज़ रिलेटेड टू कंपाइलर, कि कंपाइलर क्या इस फंक्शन को कुछ देना चाहता है या क्या कुछ इस फंक्शन से वापस रिसीव करना चाहता है। दैट्स वाई ये लिमिटेड है टू द void एंड int, कि या तो ये कुछ वापस नहीं लेगा, या कंपाइलर अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो किसी नंबर में इंटरेस्टेड हो सकता है, इससे ज़्यादा वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है फ्रॉम आर डेवलप्ड मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन हमने डेवलप किया हुआ है उससे वो फर्दर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। सो वी आर गोइंग टू राइट, इफ़ वी आर गोइंग टू राइट int main, we don't need to enter anything or write anything as a input parameters, क्योंकि कंपाइलर इसको कोई input parameters नहीं प्रोवाइड करेगा। देन वी हैव टू डिफाइन दी बॉडी ऑफ आर मेन फंक्शन। बॉडी डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जहाँ बाकी अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको अपनी करली ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले जैसे हमने कहा कि हम जितनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे उतनी सारी ब्रैकेट्स को क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव ओपन दिस स्मॉल ब्रैकेट जिसको हमने क्लोज़ किया है, हमने एक करली ब्रैकेट ओपन की है और फिर उसको भी क्लोज़ किया है। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो इन दोनों करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी जाएंगी, एंड आफ्टर दोज इंस्ट्रक्शंस कैन बी एनीथिंग बट वी वांट टू डेवलप, जो भी हम करना चाह रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम से करवाना चाह रहे हैं, वो एज इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दोज एग्जीक्यूशन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस, व्हाट वी नीड टू डू कि हम अपने कंपाइलर को क्या रिटर्न करना चाहते हैं। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि ये जो रिटर्न है इसका ना प्रोग्रामर से कोई लिंक है, ना इसका इनपुट आउटपुट से कोई लिंक है, ना आपकी स्क्रीन से कोई लिंक है, ना आपके कीबोर्ड से कोई लिंक है। इट इज़ प्योरली फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर को क्या, अगर हम कुछ वापस करना चाहते हैं, अगर हम उसे कुछ वापस नहीं करना चाहते तो सिंपली वी आर गोइंग टू राइट void, और हम कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे, मीन्स हम रिटर्न की लाइन को नहीं लिखेंगे या कमेंट कर देंगे। एंड इफ़ वी वॉन्ट टू रिटर्न सम नंबर तो हम int लिखेंगे कि हम कोई नंबर रिटर्न करना चाहते हैं, एंड वी कैन रिटर्न सिंपली अ नंबर 0 1 2 3। 0 इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि 0 का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में बीइंग प्रोग्रामर हमारे नज़दीक कोई एरर नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। सो वी आर रिटर्निंग 0 टू द कंपाइलर के ऑल सेट फ्रॉम आर साइड, कि हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है और हम अपने प्रोग्राम से सेटिस्फाइड हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस रन हो गई हैं, and we just want to return simply 0 means no error, right? So you have two different ideas, you have two different methods to develop main function, one with the integer return type and one with the void return type. If you are going to use int as your return types, means you need to return a value, a number from the function to the compiler, वो compiler को वापस मिलेगा। और अगर आप कंपाइलर को कुछ वापस नहीं करना चाहते, देन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेकंड मेथड, दैट आवर रिटर्न टाइप विल बी void. वी डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, एंड इफ़ वी डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग देन वी नीड टू स्किप द रिटर्न लाइन। सो void के साथ कोई रिटर्न की लाइन नहीं होगी, और अगर आप int लिखेंगे तो int के साथ आपकी मस्ट एक रिटर्न की लाइन होगी जिसमें आप कोई नंबर रिटर्न करेंगे जो प्रेफरेबली 0 होगा। नाउ कम बैक टू आवर प्रोग्राम जिसको हम पहले से डेवलप कर रहे हैं।
Okay, this is our program. Now we get some idea of functions कि functions क्या होते हैं और functions कैसे काम करते हैं. Functions बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी और language में, जैसे physics में, maths में या फिर किसी भी और आपके domain में function एक functionality perform करता है, बिल्कुल उसी तरह से programs में भी different functions होते हैं और वो different functionalities perform करते हैं. हर C++ प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है और उस मेन फंक्शन के अंदर ही सारी फंक्शनैलिटी को लिखा जाएगा. जो कोड आपका मेन फंक्शन का पार्ट नहीं है वो आपके किसी भी वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ मेन का कोड एग्जीक्यूट करेगा. सो जस्ट रिवाइजिंग, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि कमेंट कैसे बनाते हैं. हमने एक और कमेंट लिख दिया. हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है. हेडर फाइल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएंगे हमारी हेडर फाइल्स और इंक्लूड होती जाएंगी. फॉर द टाइम बिंग हमें सिर्फ और सिर्फ 2 हेडर फाइल्स की ज़रूरत है, दैट इज़ आईओस्ट्रीम एंड नेम स्पेस std. सो जो नेम स्पेस होती हैं उनको यूजिंग के कीवर्ड के साथ इंक्लूड किया जाता है और जो सिंपल हेडर फाइल्स होती हैं उनको हैश इंक्लूड के साथ ऐड किया जाता है. सो वी एडेड two libraries, 2 header files, then we write up the main function. मेन फंक्शन के लिए हमारे पास उसी तरीके से 2 मेथड हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया. वी कैन आइदर राइट इंट और वी कैन राइट void. हम void भी लिख सकते हैं, int भी लिख सकते हैं. If you are going to write int, then you must need to line return 0. Return 0 means we want to return, this function is returning 0 to the compiler, not the user, not the programmer, नॉट ऑन एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. इसका स्क्रीन, आपके कीबोर्ड, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये सिर्फ कंपाइलर से कुछ ले सकता है या कंपाइलर को कुछ वापस दे सकता है. मेन के बाद हमने ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा हुआ. इट मीन्स कि ये कंपाइलर से कुछ नहीं ले रहा, लेकिन येस एक नंबर रिटर्न कर रहा है जस्ट टू टेल द कंपाइलर कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया. सो वी जस्ट गोइंग टू रिटर्न 0. सो वी अंडरस्टूड दीज लाइन्स एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द लाइन रिटर्न 0 with the conclusion that कि हर लाइन के एंड पे हमारे पास सेमीकोलन है. Now there might be a question in your mind कि हमारे पास int main के आगे क्यों हमारे पास सेमीकोलन नहीं आया. हमारे पास हेडर फाइल के आगे भी नहीं आया. जो हैश इंक्लूड की लाइन है उसके आगे सेमीकोलन नहीं आता क्योंकि आपके पास ब्रैकेट्स यूज़ हुई हुई हैं. वो उसकी इंडिकेशन होती हैं कि वो क्लोज़ हो चुका है. हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std, दिस इज़ अ इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शन के आखिर में सेमीकोलन आएगा. नाउ कम टू इंट मेन. क्योंकि ये मेन का फंक्शन आगे कंटिन्यू हो रहा है तो जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास कंटिन्यू हो रही होती हैं उनके आखिर में सेमीकोलन नहीं आता. मेन फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ. मेन फंक्शन आगे चल रहा है और वो आगे तक चलता रहेगा जब तक उसकी ब्रैकेट्स क्लोज़ नहीं हो जाती. जब भी कोई चीज़ आपके पास ब्रैकेट्स पे क्लोज़ हो रही हो तो ब्रैकेट्स के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ऊपर हमारे पास फर्स्ट लाइन में भी हमारे पास आईओस्ट्रीम के बाद ब्रैकेट क्लोजिंग थी, क्लोजिंग ब्रैकेट पे हम एंड कर रहे थे, उसी तरीके तो हमने सेमीकोलन नहीं यूज़ किया था. बिल्कुल उसी तरह से हम मेन का फंक्शन भी एक ब्रैकेट पर क्लोज़ कर रहे हैं तो हमने ब्रैकेट के रिस्पेक्टिव ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं किया और ना यहाँ पे इस लाइन में 6 लाइन में किया है क्योंकि ये आगे कंटिन्यू है और ये आगे फंक्शन चल रहा है. अब इस फंक्शन के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ सम सेमीकोलन्स टू सेपरेट दोज इंस्ट्रक्शंस. उन इंस्ट्रक्शंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, जैसे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं डिफरेंट लाइंस को, डिफरेंट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करेंगे. What was the task of this C++ program is टेक्स्ट प्रिंटिंग प्रोग्राम. हम अपनी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना चाह रहे थे और उस प्रिंटिंग के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं कि जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं तो कंपाइलर अब प्रोसेसर से कहता है कि स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर डाटा प्रिंट हो जाना चाहिए, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड कर देता है. कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन C++ में यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड सी आउट. सी आउट का क्या मतलब है कि आपका कोई भी डाटा आउट हो रहा है टूवर्ड्स स्क्रीन, कि आपका डाटा स्क्रीन के ऊपर सी आउट हो रहा है. क्योंकि डाटा आपके स्क्रीन से आउट हो रहा है तो आपके इसके आगे जो ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं दैट इज़ एंगल ब्रैकेट्स, और ये हमेशा डबल में यूज़ की जाती हैं.
इन डबल ऑपरेटर्स को, इनको स्ट्रीम ऑपरेटर्स कहते हैं। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये इसका सिंटेक्स है, इसमें अभी आपको मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कम्प्लेक्स डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि आपका सी आउट इज़ अ इंस्ट्रक्शन, ये कीवर्ड है तो इसको सी आउट ही लिखा जाएगा, इसकी स्पेलिंग नहीं चेंज किए जा सकते, इसको कैपिटल में नहीं लिखा जा सकता, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसके बाद क्या मेंशन किया जाएगा, दैट इज़ योर टू एंगल ब्रैकेट्स, और एंगल ब्रैकेट्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, कि ये डाटा आउट हो रहा है। क्या आउट हो रहा है, हम क्या स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, वो सारा की सारी इंस्ट्रक्शन आप इन ब्रैकेट्स के बाद लिखेंगे, राइट। इन ब्रैकेट्स के बाद आप कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर क्या दिखाना चाहते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स का डाटा हो सकता है। आप कोई नंबर दिखाना चाहते हैं, यू कैन राइट सम नंबर। आप अपनी स्क्रीन पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, सो यू कैन राइट 1912111 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डाटा सी आउट हो जाएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप कोई इसकी जगह अपना नाम लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो नाम इज़ अ स्ट्रिंग, नाम आपके पास नंबर्स की तरह एक्ट नहीं करता, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो आपकी कीबोर्ड पे अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे आपके पास एज अ स्ट्रिंग काउंट होते हैं, एज अ कैरेक्टर काउंट होते हैं। कैरेक्टर को हमेशा, या कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को आप किस तरीके से मेंशन करते हैं, आइदर विद द सिंगल कोट्स और विद द डबल कोट्स। या तो आप अपने सिंगल कोट्स के दरमियान में कुछ लिखेंगे, या फिर आप अपने डबल कोट्स के दरमियान में लिखेंगे। अगर आपने सिर्फ एक कैरेक्टर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिर्फ प्रिंट करना चाहती हूँ, दैट इज़ एस, तो मैं उसको सिंगल कोट्स के दरमियान में लिख सकती हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दैट इज़ एस। आपकी आउटपुट स्क्रीन क्या आएगी, एस आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा। लेट्स सपोज़ मैं अपना पूरा नाम मेंशन करना चाहती हूँ, तो मुझे अगर पूरा नाम मेंशन करना है तो मुझे उसको किस में लिखना पड़ेगा, इनटू डबल कोट्स, देन आई कैन राइट सहरेश और एनी वर्ड और एनी कैरेक्टर, एनीथिंग ऑन योर कीबोर्ड, कुछ भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने इन डबल कोट्स को क्लोज़ ज़रूर करना है। आपने डबल कोट्स जो यहाँ पे स्टार्ट किए थे, उनके दरमियान में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना फेवरेट सॉन्ग लिख सकते हैं, एनीथिंग, मीन इंक्लूडिंग ऑल द कीज़ ऑन योर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे जितनी कीज़ हैं वो इन डबल कोट्स के दरमियान में कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, और वो एज़ इट इज़ आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा सैरिश, लेट्स राइट समथिंग मोर सेंसिबल, फॉर एग्जाम्पल सैरिश, and then I have mentioned instructor fundamentals of programming course and exclamation sign, और ये मैंने पूरा हो गया। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। सो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे अब इस सी आउट की इंस्ट्रक्शन में सीखी। सी आउट इज़ अ इंस्ट्रक्शन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। सो सी आउट इज़ गोइंग टू बी वर्क एज अ फंक्शन, एज अ मैकेनिज्म, एज अ मेथड टू डिस्प्ले समथिंग ऑन योर स्क्रीन। क्या स्क्रीन पे हम शो करना चाहते हैं, हम या कोई नंबर शो करना चाह सकते हैं, या हम कोई कैरेक्टर शो करना चाह सकते हैं, मीन्स एक सिंगल अल्फ़ाबेट शो करना चाह सकते हैं, या फिर हम पूरे के पूरे कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक सेंटेंसेस शो करना चाह सकते हैं। तो अगर नंबर शो करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली नंबर्स लिख सकते हैं, तो वो नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। अगर हम कोई सिंगल एक कैरेक्टर लिखना चाहते हैं तो हम सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे, सिंगल कोट डालेंगे और उन सिंगल कोट्स के दरम्यान में उस कैरेक्टर को मेंशन करेंगे। और अगर हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मीन सेंटेंसेस स्क्रीन पे लिखना चाह रहे हैं तो हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे, और उन डबल कोट्स के दरम्यान में हम एक पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है वो मेंशन कर सकते हैं। सो यू हैव सम नंबर्स जो नॉर्मली इंटीजर होते हैं, देन यू हैव कैरेक्टर्स जो एक सिंगल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी की ऑन योर कीबोर्ड इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ हैं, ABC इंक्लूडिंग, ये आपके पास डिफरेंट सिंबल्स बने हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सब के सब कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और अगर इन कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन कर लिया जाए तो उनके कम्बिनेशन को स्ट्रिंग्स कहा जाता है, एंड इसकी फर्दर डिटेल्स हम आगे देखेंगे।
अंडरस्टूड अ बेसिक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हमें एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाना आ गया है कि जिसमें हमें कोई भी किसी प्रोग्राम के थ्रू हम अपने प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो हमारे लिए स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले कर दे, स्क्रीन पे कोई सेंटेंस डिस्प्ले कर दे, हमारा नाम डिस्प्ले कर दे एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें डिस्प्ले कर दे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इन कंपाइलर कि हमारे पास किस तरह की और कैसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इन दिस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मैंने अब जो कोड अभी हम देख रहे थे उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है एंड वी जस्ट वांट टू रन इट एंड एग्जीक्यूट इट एंड सी द आउटपुट कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आप ये अपने लैब सेशन में सीख चुके हैं कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है और प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से एक C++ फाइल क्रिएट की जाती है और उस फाइल के अंदर आप अपना कोड लिखते हैं। इस कोड के अंदर हमने सिंपली जो कोड अब तक अंडरस्टैंड किया है उसको कॉपी कर लिया है और उसको हम रन करके चेक करना चाह रहे हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं आपका कोड लिखने में बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स इफ़ेक्ट्स। आपके हर डिफरेंट कॉन्सेप्ट का कलर डिफरेंट होगा। जिस तरह से यहाँ पे आपके जितने कमेंट्स हैं, कमेंट्स मींस वो पार्ट जो एग्जीक्यूट नहीं होना, जो सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए मेंशन किया हुआ है, जो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ है, वो सारा का सारा आपके पास डिफरेंट एक और ब्लैकिश से कलर, ग्रेइश कलर में आ गया है। आपके पास जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपके पास डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं। आपके पास फंक्शंस का डिफरेंट कलर हो गया है। जो आपके पास कांस्टेंट स्ट्रिंग्स हैं उन स्ट्रिंग्स का डिफरेंट कलर हो गया है। सो ये कलर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमने ठीक लिखा हुआ है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस करेक्टली राइट अप हुई हुई हैं। ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पास हो सकता है जो कमेंट्स हैं वो ग्रीन कलर में आ रहे होंगे या आपके पास डिफरेंट कलर स्कीम चूज़ हो रही होगी, बट दैट कलर स्कीम्स हेल्प अस अ लॉट कि हम अंडरस्टैंड कर सकें अपने कोड को और उसको बहुत आसानी से, अगर उसमें कोई एरर है तो उसको भी फिगर आउट कर सकें। ओके, सो वी हैव अ प्रोग्राम जिसके अंदर हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, एक नेम स्पेस को यूज़ कर लिया, एक मेन फंक्शन हमने इसमें क्रिएट कर दिया है और उस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ रन करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। लेट्स रन इट। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, इट विल टेक सम टाइम क्योंकि मैंने अभी अभी अपने कंपाइलर को रन किया है, सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम। सो हियर वी हैव, आपके पास जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास एक ब्लैक कंसोल स्क्रीन आएगी और उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। मैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंट यूज़ कर रही हूँ तो मेरी इसमें आउटपुट नीचे फिगर आउट हो रही है। लेट मी शो यू हियर। ओके, सो दिस इज़ मेरे पास, हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या थी? इंस्ट्रक्शन थी सी आउट। हम सी आउट क्या करवाना चाह रहे थे? सैरिश इंस्ट्रक्टर फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग कोर्स। सो एज इट इज़ जो कुछ भी हमने डबल कोट्स के दरमियान में लिखा था वो एज इट इज़ हमारे पास कहाँ डिस्प्ले हो गया है? हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया है। आफ्टर द कंप्लीशन, जब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसके अंदर ये नोट ऐड कर देता है कि प्रोग्राम एंडेड एंड एग्जीक्यूटेड विद द कोड 0, क्योंकि हमने 0 रिटर्न किया था तो इट मीन्स कि आपके पास 0 आ रहा है। अगेन ये जो लाइन है ये हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ना ही हमारा इससे कोई कंसर्न है। ये विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट चेंज भी हो सकती है। सो हमारा कंसर्न सिर्फ क्या था कि हमने अपने प्रोग्राम से स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना था। सो वी फाइनली सक्सेसफुली डिड इट। हमने स्क्रीन पे शो करवा दिया है जो है हम एक पर्टिकुलरली स्ट्रिंग शो करवाना चाह रहे थे। इसमें ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर मैंने यहाँ पे अपने कोड में सैरिश से पहले स्पेस दी हुई थी तो बिल्कुल वही स्पेस आपके पास आउटपुट स्क्रीन में भी आएगी। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस, बल्कि 2 स्पेसेस दी हुई थी, तो वो 2 स्पेसेस एज इट इज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट होंगी। इट मीन्स कि डबल कोट्स के दरमियान में जो कुछ भी लिखा हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर टिल द लास्ट कैरेक्टर, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। रीड कर लिया है जिसमें हमने एक कुछ सी आउट करवा के देख लिया। लेट्स हैव अ लुक मोर इन मोर डिटेल कि हमारे पास कुछ चीज़ें जिसमें हमने यूज़ की थी उनको क्या कहते हैं, उनका क्या पर्पस होता है। लिटिल बिट मोर डिटेल्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ द कमेंट्स। हमने कमेंट्स में देखा था क्या, दोज आर सिंपल काइंड ऑफ नोट्स फॉर द प्रोग्रामर। जो भी कोड हम लोग लिख रहे हैं उसमें अगर हमने कोई हेल्पिंग नोट्स ऐड करने हैं, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है,
अपना कोई बुक मार्क ऐड करना है, सो वी कैन ऐड दैट यूजिंग comments. In comments we have two type of comments, that is multi-line comment and a single line comment. सिंगल लाइन कमेंट हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था, दैट इज़ विद अ डबल फॉरवर्ड स्लैश. विद अ डबल फॉरवर्ड स्लैश, इस डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, इन डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आपके पास लिखा हुआ है दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर एज द कमेंट फॉर दैट सिंगल लाइन. जैसे ही हम एंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन में कोई कोड लिखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर एज द एग्जीक्यूटेबल कोड, वो आपका कमेंट का पार्ट नहीं होगा. लेकिन लेट सपोज अगर आपका कमेंट बड़ा हो गया, आप ज़्यादा कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं और आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ मल्टी लाइन कमेंट एज वेल. मल्टी लाइन कमेंट करने का क्या मेथड है कि आप यूज़ करेंगे वन फॉरवर्ड स्लैश देन स्टैटिक. उसके दरम्यान में आप अपना सारा कमेंट मेंशन करेंगे और जहाँ पे भी आप कमेंट को एंड कर रहे हैं वहाँ पे एंडिंग के लिए आप यूज़ करेंगे अगेन द स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश स्टैटिक, और क्लोजिंग के लिए स्टैटिक स्लैश. इसको जैसे हम देख लेते हैं कि अगर हमने डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे. ये आपका कोड है. लेट सपोज मैंने एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स में कमेंट मेंशन करना है. दिस इज़ द सिंपल प्रोग्राम, टेक्स्ट प्रिंटिंग प्रोग्राम. ये दो लाइन्स हैं, बजाय इसके कि मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट्स बनाऊँ, दो सिंगल लाइन कमेंट बनाऊँ, मैं एक मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाह रही हूँ. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक. इसके बाद जब तक उसे दोबारा कंपाइलर को स्टैटिक स्लैश नहीं मिलता, वो सारे कोड को, वो आगे सारी की सारी लाइंस को एज अ कमेंट कंसीडर करेगा. सो मल्टी लाइन कमेंट्स को क्लोज करना ज़रूरी होता है. हमने ये कमेंट स्टार्ट किया और हम इस कमेंट को क्लोज अगर करना चाहते हैं तो हमें कहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टू क्लोज इट समवेयर हेयर. वी कैन फॉर एग्जांपल लाइक स्टैटिक स्लैश. तो हमने स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट किया, इनके दरमियान जितना भी कोड होगा वो एज अ कमेंट कंसीडर होगा. सो यू कैन यूज़ ऑल्सो हेयर द स्टैटिक स्लैश. तो आपको फिर नीचे वाला मिटाना पड़ेगा कि आपका यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन की फर्स्ट लाइन के स्टार्ट से लेके सेकंड लाइन के एंड तक आपका ये सारा का सारा कमेंट कंसीडर होगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी मल्टी लाइन कमेंट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ द हैश इंक्लूड, जो हम लोगों ने हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया था. ये आपके पास और कहलाता है दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. जो आपके पास हैश इंक्लूड है ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है. दिस इज़ समथिंग अ कोड टू इंक्लूड समथिंग और लोड समथिंग इन योर, लोड सम फाइल्स इन योर प्रोग्राम. तो आपके पास ये पर्टिकुलर हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करने के लिए हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है. iostream.h और iostream ये दोनों के दोनों अलाउ करते हैं फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. जो भी आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज सीन, सी आउट, इस टाइप की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसमें सेव हो रही होगी. ओके, सो नेक्स्ट इज़ आर मेन फंक्शन. फंक्शंस को हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है कि फंक्शंस किस तरह काम करते हैं, फंक्शंस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, आपके ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ कौन सी ब्रैकेट्स लगाते हैं, रिटर्न कहाँ यूज़ करते हैं. सो हमने ये काफ़ी डिटेल्स में व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फंक्शन थिंग, तो इसमें हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया था कि हाउ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन. फंक्शन, जस्ट फॉर द रिविजन, फंक्शन शुड हैव अ रिटर्न टाइप, देन वी हैव द फंक्शन नेम, देन वी हैव मस्ट हैव द स्मॉल ब्रैकेट्स. स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने पैरामीटर्स शो कर सकते हैं जो आप रिसीव कर रहे हैं. एंड देन यू हैव द फंक्शन बॉडी. फंक्शन बॉडी इज़ द मेन कोड ऑफ द फंक्शन. वो आपके पास करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाएगा और इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान में आपके पास सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी. और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के एंड पे सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, दैट इज़ रिटर्न, कि ये फंक्शन एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रहा है. जस्ट फॉर द रिविजन, मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के लिए मस्ट है. कंपाइलर ने सिर्फ मेन फंक्शन को रन करना होता है, तो जो इस फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड करता है दैट इज़ गोइंग टू बी कंपाइलर. इस फंक्शन से जो भी आउटपुट रिटर्न हो रही है वो भी कंपाइलर के पास वापस जा रही है. उसका स्क्रीन इनपुट, स्क्रीन आउटपुट, आपके पास कोई भी कीबोर्ड इनपुट या आपकी किसी भी डिवाइस से कोई लिंक नहीं है. यू कैन नॉट लिंक इट विद द समथिंग लाइक के स्क्रीन पे आ जाएगा या किसी आपकी कनेक्टेड डिवाइस पे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू राइट रिटर्न 1 2 3 4, तो आपकी स्क्रीन पे 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ आएगा, सिर्फ वो कोड सेंड हो जाएगा कंपाइलर को. एंड देन इट अप टू कंपाइलर के वो उसके लिए उसके रिस्पेक्टिव उसको क्या काम करना चाहता है, कैसे यूज़ करना चाहता है. दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न. ओके, सो हम लोगों ने वी went through the int main line and all the detail of a function and function body. Okay, there is an interesting fact as well, that is this thing. आपके पास जो
curly brackets हैं. Curly brackets is also a representation for the block of instruction. When you want to represent a block of instruction, means a combination of some instructions, then you can use these brackets, that those curly brackets. Curly brackets हमेशा आपके सारे कोड के अंदर बहुत सारी जगहों पे आगे भी चल के यूज़ होंगे. कर्ली ब्रैकेट हमेशा एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से लेके लास्ट इंस्ट्रक्शन तक ये सारा का सारा ब्लॉक रिप्रेजेंट हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई माय कीबोर्ड इज़ नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग. राइट, ओके. सो आपका फर्स्ट यहाँ से इंस्ट्रक्शन से लेके लास्ट तक ये पूरा एक ब्लॉक कंसीडर हो रहा है. मीन्स इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था इन द फर्स्ट लेक्चर. Okay, so we also went to the return zero, this bracket and the linker thing. Linker thing is actually जो हम लोगों ने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है. वो हेडर फाइल्स किस तरीके से हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनेंगी टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम. सो ये हमारे पास ये लिंकर का काम होता है. अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, किस तरह से एग्जीक्यूशंस कर रहा है, पीछे बैक एंड पे क्या रैम यूज़ कर रहा है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से डील कर रहा है, वो कुछ भी हमारा पार्ट नहीं है. वो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं. दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स. वी आर जस्ट ट्रस्टिंग टू कंपाइलर. हमें सिर्फ वो पता है कि हमने कंपाइलर को क्या बताना है, एंड देन कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको रन करता है और हमारे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. सो दिस इज़ गुड इनफ फॉर आवर प्रोग्राम. हम लोगों ने एक सिंपल प्रोग्राम बनाना सीख लिया, उसके मेन सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. Next we are going to cover the data types. Okay, so okay, now let's talk about something memory and the concept of variables. Actually, whenever we are going to program something, we want to develop something, at the end we are going to deal with the data. हमारे पास हमेशा कोई डेटा होगा जिस पे हम काम करना चाहते हैं. टेकिंग द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, जिस तरीके से अभी हम स्क्वायर की एग्जांपल ले रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम फॉर एग्जांपल किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सके. सो वी नीड सम स्पेस, सम मेमोरी इन आवर रैम टू store those information, is to store that data. For example, the number, the very x value. Let's suppose I'm going to write it here. Okay, I can't. Okay, right. For example, हम लोग जिस तरह से भी बात करते हैं कि y is equal to स्क्वायर का फंक्शन, फॉर एग्जांपल एस क्यू के नाम से मैंने रख दिया, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक इनपुट x. लेट्स सपोज मैं अपने पास एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रही हूँ जो मेरे लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करे और उस नंबर को स्क्रीन पे प्रेजेंट कर ले. अब मुझे वो नंबर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेमोरी में कहीं एक स्टोर करना पड़ेगा. आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं या आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, हाउ यू कैन आर गोइंग टू राइट इट. आप किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो भी x की वैल्यू है दैट इज़ 20. तो ये x एक्चुअली में क्या है? दैट इज़ योर वेरिएबल. यही सेम वेरिएबल कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग में आता है, इट कम्स विद द मेमोरी कॉन्सेप्ट. क्योंकि जितने भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे ये आपके पास बैक एंड पे कोई ना कोई मेमोरी ले रहे होंगे, कोई ना कोई एक स्पेस ले रहे होंगे जहाँ आप लिख रहे हैं. आप मैथ का क्वेश्चन पेपर पे पेज पे सॉल्व करते हैं तो पेज पे जहाँ पे भी आप राइट अप कर रहे हैं वो आपकी मेमोरी बनती है, वहाँ पे आपका वो डाटा स्टोर हो रहा है. बट फॉर द प्रोग्राम्स हम तो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, लाइक मेन का फंक्शन, उसके अंदर कुछ सी आउट, कुछ और इंस्ट्रक्शंस ऐड हो जाएंगी. तो हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम उसको कंपाइलर को कैसे बताएं कि वी नीड सम स्पेस इन द मेमोरी टू स्टोर दिस 20. फॉर दोज वी नीड सम काइंड ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल इज़ अ स्पेस इन द मेमोरी. वेरिएबल और कुछ नहीं है, ये आपके पास मेमोरी में जगह लेके देता है, आपके पास एक प्लॉट लेके देता है. आपके पास बहुत सारी मेमोरी है, यू हैव अ फुल मेमोरी. इस मेमोरी के अंदर आपके पास कोई स्पेस, कोई एक जगह एलोकेट करके दे रहा है कि ये वाली जगह इस पर्टिकुलर डाटा को सेव करने के लिए, इस डाटा को रखने के लिए. आपके पास जितने वेरिएबल्स होंगे उन सारे वेरिएबल्स के लिए आपकी मेमोरी में अलग अलग स्पेस रखी जाएगी. वेरिएबल कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके साइज़ के लिहाज से उसकी स्पेस एलोकेट होगी कि कितनी मेमोरी में स्पेस रखनी है.
हर स्पेस को ऑब्वियसली एक नाम दिया जाएगा। जिस तरीके से हर एक आपके पास लोकेशन होती है, कोई एक सेक्टर होता है तो आपको सेक्टर का नाम दे देते हैं, I10, I9, G11। जैसे आपके एक नॉर्मल इस्लामाबाद के सेक्टर कंसीडर कर लें तो आपके पास सेक्टर्स के नाम होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपके प्रोग्राम के अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो स्पेस ली जाएगी, हर वेरिएबल को एक नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपके पास किस रिस्पेक्टिव डिसाइड होगा कि आपके पास डेटा को कितनी स्पेस देनी है, कितनी जगह देनी है एक वेरिएबल को सेव करने के लिए। आपकी इस जगह के रिप्रेजेंटेशन या कितनी स्पेस मेमोरी की हम इसको देना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करती है विद द टाइप ऑफ डेटा, दैट इज़ योर डेटा टाइप ऑफ योर वेरिएबल, कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसमें आपने किस तरह का डेटा रखना है। यू हैव डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स, आपके पास बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हैं बाय द लैंग्वेज, और उससे रिलेटेड सारी की सारी हेल्प्स आपकी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है। ओके, वन बाय वन कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटीजर। सो इंटीजर इज़ द डेटा टाइप जो आपके पास इंटीजर नंबर्स के लिए यूज़ की जाएगी। दोज नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1000, 16, 16,000 एंड सो ऑन, बट विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। कोई भी इसके अंदर डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं हो सकता। So integer is for the integer numbers, or you can say the whole numbers. Let's suppose you want to save some data, some numbers with the decimal points, कि आप पॉइंट्स में कोई डेटा सेव करना चाह रहे हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी स्टूडेंट की। स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आपके पास किस में सेव हो सकता है, दैट इज़ इंटीजर। अगर स्टूडेंट का कोई GPA है तो वो किस में कंसिडर हो सकता है, दैट इज़ इन योर फ्लोटिंग वैल्यू, कि आपके पास एक फ्लोट का वेरिएबल है जिसके अंदर आप ये सेव कर रहे हैं। Then you have a double. Double is actually the same as float, कि आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं, डेटा बहुत बड़ा है, नंबर्स की फॉर्म में आपके पास नंबर्स की रेंज एक्सीड कर गई है, तो आपकी ज़्यादा बड़ी रेंज इस डबल में सेव हो सकती है। देन नेक्स्ट इज़ योर सिंपल अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स। आर कैरेक्टर्स अगर आपने कहीं सेव करने हैं, जैसे स्टूडेंट का क्या ग्रेड आया है, दैट इज़ ABC, सो उसके लिए आप किस में सेव कर सकते हैं, इनटू चार डेटा टाइप। सो चार डेटा टाइप इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर द कैरेक्टर्स। देन यू आर गोइंग टू हैव द डेटा टाइप दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जैसे डिफरेंट आपने सर्किट्स वगैरह पढ़े होंगे, उसमें आप पढ़ते हैं कि आपके पास ट्रू वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है। अगर आपने सिंपल 0 1 वैल्यू रखनी है कि या वैल्यू 0 है या 1 है या ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड बूल। बूल डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रू एंड फॉल्स। एंड देन द लास्ट वन, अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, समटाइम हमारे पास डेटा नहीं होता, हमने यही शो करना होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डेटा, तो हम उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वॉइड। वॉइड का कॉन्सेप्ट आप मेन से लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि मेन अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन हमें क्योंकि डाटा टाइप लिखना मस्ट होती है, तो हम उसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं, मीन्स वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग। आपको इस चीज़ का सिर्फ एक ख्याल रखना है कि जैसे आप डिफरेंट सुपर सेट्स बनाते हैं, तो उन सुपर सेट्स के अंदर एक फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज़ नल सेट। नल इज़ नॉट द वॉइड। वॉइड का मतलब है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। नल इज़ समथिंग, नल इज़ अ वैल्यू, नल वैल्यू इज़ अ वैल्यू, नल सेट इज़ अ सेट। तो नल एक वैल्यू है, लेकिन वॉइड मीन्स कम्प्लीटली नथिंग, कुछ भी ना होना। सो वी हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं। हम इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट बना सकते हैं, डबल बना सकते हैं, कैरेक्टर, बूल, वॉइड, एंड देन वी हैव सम अदर C++ डाटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग एंड सो ऑन। हम उसकी डिटेल में बाद में शिफ्ट करेंगे। ओके, वेयर यू आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो उन डेटा टाइप्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी किया जा सकता है बाय यूजिंग सम मॉडिफायर्स। फॉर एग्जांपल साइंड। साइन का मतलब है कि आप अपने नंबर्स के साथ साइन भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, मींस नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। लेट्स सपोज यू डोंट वांट टू यूज़ दी साइन, यू वांट टू यूज़ ओनली द पॉजिटिव नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ आपने अगर पॉजिटिव नंबर्स यूज़ करने हैं, देन यू कैन यूज़ द अनसाइंड। आप किसी भी डाटा टाइप के लाइक इंटीजर, फ्लोट या फिर डबल के पीछे अनसाइन लगा सकते हैं। इट मीन्स कि नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं है। नेगेटिव नंबर होगा भी तो वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा
into positive number, means उसका negative sign वो remove कर देगा. Then you have the short or the long version of every data type. Actually short and long versions are with respect to the ranges of these data types. ये जितनी भी data types हैं इनकी particularly कुछ ranges हैं जिनके साथ ये आपके पास data types use होती हैं, कुछ limits के अंदर use हो सकती हैं. लिमिट्स या रेंज का क्या मतलब है कि लेट सपोज़ मैं अगर नंबर्स की बात कर रही हूँ तो नंबर्स कितने सेव हो सकते हैं, 0 से लेके 1000 तक, 0 से लेके 10,000 से तक, 0 से लेके 1 लाख तक, या फिर कहाँ तक आखिर ये नंबर, कितना बड़ा नंबर मैं सेव कर सकती हूँ. ये डिपेंड, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होता जाएगा उसकी मशीनरी जो उसकी बाइनरी बिट है वो उतनी बड़ी होती जाएगी और उससे पीछे मेमोरी में उतनी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है. और जब हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए स्पेस ले लेते हैं, तो वो स्पेस रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकती. उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसके अंदर ही उसने अपना डाटा सेव करना है. उन स्पेसिस के रिस्पेक्टिव पहले से प्री डिफाइंड आपकी इन सारी डाटा टाइप की रेंजेस हैं कि किस रेंज का आप डाटा सेव करना चाहते हैं. अगर आप अपनी रेंज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं सो आप उसके साथ विद लॉन्ग मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब है आप अपनी रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं. अगर आपको पता है कि आपने बहुत बड़ी रेंज नहीं यूज़ करनी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं जो मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, तो वो आपके पास नॉर्मल एक उसमें वेरिएबल में सेव हो सकते हैं या उससे भी शॉर्टर में यूज़ हो सकते हैं. सो यू कैन यूज़ अ शॉर्ट मॉडिफायर फॉर दैट वेरिएबल और द डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. So we went through all these data types and we know here we have the detail of these data types के इन data types के variables के अंदर हम किस तरह का data save कर सकते हैं for our program, for our execution और as per our requirement. Okay. With respect to the ranges जिसके भी हम बात कर रहे थे, here are the ranges, जो actual ranges हैं हमारे पास कि कितनी ranges हम use कर सकते हैं. If you are going to use character data type, char data type, then char data type is going to take only 1 byte. जितने भी आपके पास ये variables हैं ये memory में जो space लेंगे ये with respect to bytes लेंगे. जो simple 0 1s हैं those are called bits. Bits के combination से बनता है byte. तो आपके पास मेमोरी यूनिट्स जो होते हैं वो विद टर्म्स ऑफ आपके पास बाइट्स होते हैं. ये आपके पास मेमोरी यूनिट्स हैं. तो अगर आपने एक कैरेक्टर सेव करना है, फॉर एग्जांपल ASP, फॉर एग्जांपल स्टैरिक, डिवीजन का साइन, लेट्स सपोज फॉरवर्ड स्लैश, करली ब्रैकेट, एनी की ऑन योर कीबोर्ड, तो उसका कैरेक्टर अगर आपने सेव करना है सो यू ओनली नीड 1 बाइट. एंड इसकी टिपिकल रेंज जो यूज़ कर जाती है दैट इज़ -1 to 8 to 1 to 7 और 0 to 255. दैट डिपेंड्स ऑन द आस्की वैल्यूज़ जो पीछे सेव हो रही हैं. अगर हम आस्की वैल्यूज़ की यहीं पे बात कर लें तो शायद ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्यूटर्स की बात की थी, दैट कंप्यूटर्स आर डिजिटल मशीन. It needs to work on the digital signal. Those digital signals are simply 0 1 bits, right? वो आपके पास सिर्फ 0 1 के कुछ स्ट्रिंग्स हैं जिसको आपकी मशीन समझ सकती है, आपका कंप्यूटर समझ सकता है. हम जो कैरेक्टर्स एंटर कर रहे हैं दैट इज़ ABCD. वो ABCD को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. तो आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और आपके कंपाइलर्स के अंदर इन सारे कैरेक्टर्स का कोई एज अ नंबर वर्जन पीछे सेव होता है जिसको आस्की कोड कहा जाता है. हर कैरेक्टर का जितनी भी आपकी कीज़ हैं आपके कीबोर्ड पे, हर कैरेक्टर के लिए एक नंबर दैट इज़ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे सेव है. तो हर कैरेक्टर का एक पीछे नंबर आपके कंप्यूटर में सेव है जिसको उसका आस्की कोड कहा जाता है. सो डिफरेंट आस्की कोड्स फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर्स. Next data type was the int that is going to use the numbers, integers, whole numbers. इन whole numbers को सेव करने के लिए int data type यूज़ की जाएगी. यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर और int के लिए कैपिटल C एंड कैपिटल I यूज़ हुआ है, बट इन एक्चुअल दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी कैपिटल. ये आपके पास क्योंकि कीवर्ड्स हैं तो ये सारे के सारे मस्ट बी इन द स्मॉल c स्मॉल I. ओके. इंटीजर वेरिएबल्स के लिए पीछे बैकएंड पे कितनी स्पेस में मेमोरी की मिलती है, दैट इज़ 4 बाइट्स. इन द न्यू सिस्टम्स, जो पुराने सिस्टम्स थे, अगर आप कोई पुराना कंपाइलर काफ़ी पुराना कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका 2 बाइट्स को यूज़ करेगा. बट इन द न्यू इन्वायरमेंट्स जो आपके पास न्यू सारे कंपाइलर्स हैं उनमें 4 बाइट्स आपके पास इंटीजर के लिए स्पेस मिलती है.
एंड दिस इज़ योर रेंज ऑफ द नंबर्स इन एक्चुअल। अगर हम नंबर्स की बात करें, मेमोरी के रिस्पेक्टिव बात ना करें, तो नंबर्स के रिस्पेक्टिव इतनी हमारे पास रेंज है जिसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर रेंज एक्सीड कर जाए तो आपका कंप्यूटर कैसे बिहेव करता है, क्या वो स्टॉप हो जाता है, क्या वो एरर दे देता है? सो नो, ना वो स्टॉप करता है, ना वो कोई एरर अकर करता है, बल्कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन का मेथड क्या होगा कि अगर आपके पास कोई नंबर इस रेंज से कम हो गया है, मींस इसमें मैंने एक और नंबर माइनस कर दिया है, तो ये इससे नीचे तो और जा नहीं सकता, तो इस रेंज में जाने की बजाय वो जंप कर जाता है टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट। सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ये नंबर सेव किया है और इस नंबर में बाद में +1 ऐड कर दिया है, तो ये इस नंबर से तो आगे ऐड हो ही नहीं सकता, इस नंबर इस रेंज से आगे तो वो जा नहीं सकता, तो वो शिफ्ट बैक कर जाता है टूवर्ड्स नेगेटिव। सो इट्स अ काइंड ऑफ सर्कुलर रोटेशन बिटवीन द रेंज। जो भी आपके पास रेंज होगी ये इसमें सर्कल में मूव करेगा एंड इट कैन जंप फ्रॉम द लास्ट वैल्यू टू द लास्ट पॉजिटिव लिमिट टू द लास्ट नेगेटिव लिमिट। तो ये इन लिमिट्स के बीच में जंप कर जाता है और कोई एरर नहीं आता। सो हमें ये खुद ख्याल रखना पड़ता है कि हम किस तरह का डाटा यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे डाटा की रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हमें डाटा टाइप डिफरेंट यूज़ करनी चाहिए, लाइक लॉन्ग इंट यूज़ कर लेना चाहिए या फिर डबल यूज़ कर लेना चाहिए जो हमारे पास ज़्यादा मेमोरी लेता है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ float values. We have some numbers but with the floating point with the decimal वैल्यू, सो उसके लिए भी 4 बाइट्स होती हैं बट उसकी रेंज ज़्यादा है। सिमिलरली देन वी आर गोइंग टू हैव द डबल इज़ गोइंग टू टेक 8 बाइट्स, जो उसका भी फ्लोट का डबल है, दैट इज़ 8 बाइट्स ले रहा है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, और ये पॉइंट के बाद भी 15 डिजिट्स को हैंडल कर सकता है, 15 डिजिट्स का डाटा सेव कर सकता है अपने अंदर। एंड देन दैट इज़ वाइड कैरेक्टर। जी, ये आपके पास कैरेक्टर की ही बड़ी, जैसे आपके पास इंटीजर या फ्लोट का बड़ा है दैट इज़ डबल और लॉन्ग इंटीजर। कैरेक्टर में अगर आपने ज़्यादा बड़े कैरेक्टर सेव करने हैं जो आपकी इस लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं जो 1 बाइट कैरेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है कि आपने कोई बड़ा कैरेक्टर यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। दैट इज़ नॉट द यूजुअल केस। ओके, so we are simply going to understand how we can have some variables, किस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं और हमने किस तरीके से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल नेम कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। जो भी हम वेरिएबल रखेंगे तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ उस मेमोरी को रेफ़र कर रहा होगा जिसके अंदर हमने अपना डाटा सेव करना है। Every variable has a name, a type, a size and a value. अब जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे उनकी ये 4 चीज़ें होंगी। फर्स्ट, अ नेम, हर वेरिएबल का एक नाम होगा। सेकंड, अ टाइप, मीन्स कि किस तरह का डाटा हमने उस वेरिएबल में सेव करना है। देन अ साइज़, साइज़ इज़ अगेन विद रिस्पेक्ट टू द टाइप, कि जितनी आपकी टाइप होगी उसी लिहाज से उसका साइज़ होगा पीछे मेमोरी में। एंड देन द एक्चुअल वैल्यू, जो वो वैल्यू हम उसके अंदर सेव करना चाह रहे हैं, ये उसके साथ लिंक करेगी या एसोसिएट करेगी। Whenever a new value is placed into a variable means equal, it replaces and destroys the previous value. Keep in mind कि जब भी एक वेरिएबल के अंदर हमेशा एट अ टाइम एक ही वैल्यू हो सकती है। एट अ टाइम इन अ वेरिएबल यू कैन नॉट हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज़। आपके एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू होगी, जब भी आप उसके अंदर कोई नई वैल्यू डालेंगे तो पिछली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। रीडिंग वेरिएबल्स फ्रॉम मेमोरी डज नॉट चेंज दैम। हम उन्हें चाहे जितनी बार भी उनको रीड करते रहें, यूज़ करते रहें, उससे उन इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इक्वल करके हम उनको कोई नई वैल्यू दे दें तो उससे वो फिर चेंज हो जाएगा। आप सिंपली विजुअली किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि whenever you are going to create a variable, it means you are going to have a box, you are going to have a space. इस स्पेस का कोई डाटा टाइप होगा, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इंट। आई कैन यूज़ इट एज इंट का मतलब है कि ये इसका डाटा टाइप होगी। इस बॉक्स के अंदर हम सिर्फ एक होल नंबर रख सकते हैं, होल नंबर सेव कर सकते हैं। इस बॉक्स का कोई नाम हो सकता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने x रख दिया। सो इंट x, हमारे पास एक 4 बाइट्स
जितना बड़ा बॉक्स हमें मिल गया उस बॉक्स का नाम है x। इसके अंदर सिर्फ एक होल नंबर सेव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इन डाटा टाइप। एंड व्हाट डाटा वी आर स्टोरिंग इज़ 45 कि हम इसके अंदर 45 नंबर हमने फॉर द टाइम बिंग सेव किया हुआ है। इट कैन बी एनीथिंग 20, 10, 1, 2 और एनी अदर नंबर। Variable can hold a number or a data of other type. It always holds something. A variable has a name. The data held in the variable is called a value. Variables are implemented as memory location and assign certain memory addresses. The exact address depends on the computer and the compiler. We think as the memory location are the actual labeled with the variable names. आपके पास जितने भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे ये पीछे आपके पास कोई ना कोई मेमोरी लेंगे, हर मेमोरी का कोई एड्रेस होगा। लेकिन एड्रेसेस की डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका कंपाइलर डील कर रहा होगा कि किस एड्रेस पर आपको ये लोकेशन दी गई है और कितनी लोकेशन या कितना साइज़ आपको प्रोवाइड किया गया है फॉर दिस वेरिएबल। These variables are also called identifiers. Identifiers, name of a variable or any other named construct. Identifier is, you can say, is also considered as the name of the variable को भी identifier कहा जाता है. Identifier must start with a letter or underscore symbol. The rest of the characters should be letters, digits or underscore. जब भी आप किसी वेरिएबल का कोई नाम रखने लगेंगे तो आपका नाम बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स का सम सेव करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर और उस वेरिएबल को आपने सिर्फ सम के लिए यूज़ करना है तो अप्रोप्रिएट नेम विल बी सम। आपने कोई एवरेज कैलकुलेट करनी है यू कैन राइट एवरेज। अगर आपने सिंपल वेरिएबल्स के लिए कोई चूज़ करना है जैसे इनपुट वेरिएबल्स के लिए फॉर एग्जांपल x1 x_1 तो आप इस तरह का कोई भी नाम अपने वेरिएबल का रख सकते हैं। वेरिएबल नेम्स के लिए जो कुछ रूल्स फॉलो करने हैं दैट इज़ कि आपका वेरिएबल का नाम सिर्फ़ और सिर्फ किसी अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। आप अपना किसी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू राइट 3x सो आपका कंपाइलर एरर देगा कि आपके वेरिएबल का नाम 3x नहीं हो सकता बट कैन बी x3। सिमिलरली आप अपने वेरिएबल्स के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे दैट इज़ परसेंटेज चेंज तो ये परसेंटेज इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर मीन्स ये आपके अल्फ़ाबेट नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स को आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि आपके कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के अलावा जितनी कीज़ होती हैं वो सब की सब स्पेशल कैरेक्टर में कंसिडर होती हैं। सो आपके किसी भी आइडेंटिफायर में मीन्स वेरिएबल नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। इवन जो आपके कीबोर्ड पे स्पेस है स्पेस भी आपका एज अ स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर होता है और वो आपके वेरिएबल नेम में नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ रेट एवरेज। अगर मैं रेट स्पेस एवरेज दे दूँगी तो आपका कंपाइलर एरर देगा कि ये सिंगल नेम या सिंगल वेरिएबल नेम नहीं है। सो यू कैन नॉट यूज़ स्पेस एज वेल इन बिटवीन द वेरिएबल नेम या फिर उसके शुरू या एंड पे आप स्पेस यूज़ नहीं कर रहे होते। So variable name is you can take any variable name as the starting with the alphabet or underscore. You can use the numbers digits but not as a first one. मतलब आप digits use ज़रूर कर सकते हैं like x1 लेकिन आपका पहला कैरेक्टर आपके वेरिएबल नेम का पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ C++ इज़ केस सेंसिटिव मीन्स आपकी C++ लैंग्वेज के अंदर स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स डिफरेंट कंसीडर होंगे। आपके एक वेरिएबल का नाम x और आपके दूसरे वेरिएबल का नाम कैपिटल x सॉरी उसने दोनों कैपिटल कर दिया कैपिटल x हो सकता है। दीज कैन बी टू डिफरेंट थिंग फॉर कंपाइलर फॉर योर प्रोग्राम स्मॉल x इज़ डिफरेंट थिंग कैपिटल X इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग। कंपाइलर खुद से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये सेम है। सो कंपाइलर हमेशा इनको डिफरेंट कंसीडर करेगा कि स्मॉल x और है एंड कैपिटल X और है। ये हमें प्रोग्राम लिखते हुए ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने स्मॉल यूज़ किया हुआ है या फिर कैपिटल यूज़ किया हुआ है। ओके सो ओके
we want to stop it. This is all for today's lecture. We went through a simple program to display our string in a on the compiler. हमने compiler के ऊपर एक program run किया जिसके थ्रू हमने एक कुछ particular instruction है जो screen पे show करवाई. We went through the header files, we went through the comments, we went through the functions, we went through the importance of the main function, and we went through different parameters each and every line of our code, and we understood a simple C++ program, which, trust me, if you are understanding it well, then it's a big achievement for you all. So, and then we also covered the concepts of variables, how we can use a variable, what it means, variable name, variable space, memory, its ranges, how we can decide the name of the variable. So we also covered the concept of variables and names. This was all about today's lecture. Hopefully आप लोगों को डिटेल में समझ आया होगा. जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, please note it down and we will have it on the board while we are going to have the GMAT discussion session. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.